नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के गांव खोसा दल सिंह के नजदीक एक कैंटर और ई रिक्शा में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। गुरदासपुर के गांव तलवंडी विर्क के खेतों में से मिला एक पाकिस्तानी ड्रोन, पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा जांच के लिए। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के गांव खोसा दल सिंह के नजदीक एक कैंटर और ई रिक्शा में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ई रिक्शा के पीछे कैंटर की ओर से टक्कर मारी गई तो ई रिक्शा में सवार एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं इस घटना संबंधी पुलिस को सूचना दे दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई कि किस तरह और किस कारण ये हादसा हुआ। मेरा नाम स्वरूप सिंह है। फिरोजपुर ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੀਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਠੇਸ। ਜੀਰੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। ਆ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਾਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਕਾ ਸੀਗਾ। अच्छा उत्थे जा रहे रस्ते च की टिप्पर आया ਪਿੱਛੋਂ ਟਿੱਪਰ ਆ ਕੇ ਠੇਸ ਮਾਰੀ ਜੀ। तेज रफ्तार सीगा ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ डेथ किन्ना दी ਆਏ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। किन्नी हो 50 ਪਲੱਸ ਸੀਗੀ। 50 प्लस कार्रवाई होनी चाहिए टप्पर वाले ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਖੋਸਾ ਦਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। 2 ਲੇਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਮੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਡੈਥ ਹੋਈ ਐਂਡ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 किन्ने इंजन बच्चे ਇੰਜਰਡ 2 ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈ। डेड हो फिलौर में चलती ट्रेन में से एक लड़की के गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो जाने का मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ से आ रही एक ट्रेन में सवार 18 वर्षीय लड़की खिड़की में बैठी हुई थी, जो कि चलती ट्रेन में से अचानक बाहर गिर गई, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन आ रही थी कि अचानक वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने लड़की को गिरती हुई देखकर ट्रेन को रोक लिया और उसे घायल अवस्था में उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की ओर से लड़की को प्राथमिक उपचार देकर उसे जालंधर रेफर कर दिया गया। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਿਲੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਲੜਕੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਾਇਆ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ CT ਸਕੈਨ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। की नाम पता दस ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੈਨਾ ਹੈਗਾ। की नाम सन ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਨੈਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਹਾਂਜੀ। किन्नी हो ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮ ਸੁਨੈਨਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਬਲਜੀਤ। ਇਹ ਬਗਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਮੋਗਾ, ओके ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾ ਕੁ 10 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ GRP ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਬਰ 390 ਦੇ 30 ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਡੀਲੈਕਸ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ। ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ। ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ
ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਮਲ ਚ ਕੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਓਕੇ। आए दिन पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के जरिए नशीली पदार्थ भेजने के मामले सामने आते रहते हैं, जिन्हें सीमा पर तैनात बीएसएफ के सतर्क जवानों की ओर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया जाता है। अब एक बार फिर गुरदासपुर के गांव तलवंडी विर्क के खेतों में से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपीडी बलविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को गुरदासपुर के सीमावर्ती गांव तलवंडी विर्क के खेतों में से बरामद किया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार गत रात्रि बीएसएफ सेक्टर गुरदासपुर की सीमा पोस्ट चंदू वडाला पर रात को एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद सरहद पर तैनात बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर 3 राउंड फायर किए थे और ड्रोन वापस लौट गया था। वहीं उन्होंने बताया कि जब सुबह जवानों ने सरहदी इलाके में सर्च अभियान चलाया तो वहां से 11 किलो हेरोइन मिली थी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवानों को मानना है कि ये वही ड्रोन हो सकता है जिसके जरिए पाकिस्तान ने हेरोइन के पैकेट भेजे हैं। वहीं पुलिस ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि इस ड्रोन ने कुछ और तो ड्रोन नहीं मिले किया है फर्दर जी इसे सच वेरीफाई कर रहे हैं फर्दर भी ये ड्रोन की एक्टिविटी कितों हुई है और ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਐਫਐਸਐਲ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ weight ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਫਐਸਐਲ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਦੂ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਰਚੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਚੰਦੂ ਬਟਾਲਾ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਚੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ बिल्कुल ये ड्रोन ਅਸੀਂ कब्जे लैके एफएसएल में भेजांगे। फिलौर में दिन दिहाड़े एक मनी चेंजर की दुकान से लूट होने का मामला सामने आया है। भगवान वाल्मीकि चौक के नजदीक एक दुकान पर मोटरसाइकिल पर आए 2 लुटेरों का काउंटर पर बैठी लड़की पर दातर के साथ उन्होंने जानलेवा हमला कर गले में से 35-40 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वही दुकान के मालिक और घायल लड़की ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे 2 लुटेरे उनकी दुकान के अंदर दाखिल हुए और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान दर्ज कर बनती कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब रहे कि 3 दिनों में लूटपाट की ये दूसरी बड़ी घटना सामने आई है। 2 दिन पहले ही एक महिला के पास से 2 लाख रुपयों की एक सोने की चेन लूट ली गई थी। ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੀ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਫਲੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਖੋਸਲਾ। ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ? ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਕੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ। ਓਕੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਈਮ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਨੂ 9 ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ? ਅਮਾਉਂਟ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40,000 35-40,000 ਦੇ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਡਰੂ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं एस सुरेंद्रपाल थाना फ्लोर तैनात हाँ। अज एक कॉल आई सी भी SK मनी चेंज दुकान से ਹਾਂਜੀ। कोई लड़की तो पैसे खो के लेके गए ਹਾਂਜੀ। तो उत्थे मौके पर पहुँच चुके हैं। जो भी लड़की बयान लिखाऊंगी बनती कार्रवाई ਕਿੰਨੀ की। ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ? जो लड़की दस रही है 35,000 के करीब। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ? 2 कहती अंदर आए तो एक बाहर से मोटरसाइकिल खड़ा। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੁਲੀਏ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? उन्हें मूँह बंदे कहती ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ?
ਕਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗੂਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ देखा जाएगा। भारत विकास परिषद जालंधर आस्था की ओर से लॉयंस भवन में दायित्व ग्रहण एवं परिवार मिलन समारोह आयोजित करवाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब के जिला गवर्नर रशपाल सिंह बच्चा जीवी, पंजाब प्रधान राजकुमार चौधरी, विशेष अतिथि वासुदेव गुलाटी, जिला प्रधान मनोज होंडा एवं शाखा प्रधान गुलशन अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह की शुरुआत करवाई। तो वहीं राजकुमार शर्मा ने वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं बीबी मल्होत्रा ने आए हुए मेहमानों और समस्त सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद राजकुमार शर्मा और कोषाध्यक्ष राजीव चोपड़ा ने 2023-24 की रिपोर्ट और बैलेंस शीट पढ़ी। इस अवसर पर नई टीम का गठन भी किया गया। इस दौरान 2024-25 के लिए बीबी मल्होत्रा को संरक्षक, गुलशन अरोड़ा को प्रधान, राजकुमार शर्मा को सचिव और राजीव चोपड़ा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वही राजकुमार चौधरी की ओर से नए पदाधिकारियों को लोक भलाई के कार्य करने की शपथ भी दिलाई गई। मुख्य अतिथि बच्चा जीवी और विशेष अतिथि वासुदेव गुलाटी ने कहा कि ये संस्था संस्कार, सेवा और समर्पण की भावना के साथ कार्य करती है, जिसके लिए संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। जिसके बाद बच्चों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र रोशी, विवेक शर्मा, बलदेव कत्याल, कमलेश गुप्ता, कुलदीप जैन, रतन लाल भगत, राज वर्मा, राकेश, नरेश शर्मा, इकबाल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। अंत में प्रधान गुलशन अरोड़ा ने सभी का धन्यवाद किया और राष्ट्रीय गान के साथ समारोह की समाप्ति की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मुझे आपके मनोरंजन के लिए एक छोटा सा एक स्लॉट दिया गया है कि एक कार्यक्रम पेश करें। हालांकि टाइम बहुत कम दिया है, कोशिश यही मैक्सिमम रहेगी कि जितना हो सके आपकी इंजॉयमेंट हो। सो आपसे यही आग्रह है कि जहाँ भी हम कहें आप बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लीजिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट श्री गुलशन अरोड़ा जी, सेक्रेटरी श्री राज शर्मा जी, चहीराल श्री राजीव चोपड़ा जी, इनको नए कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उठा
मान सम्मान है वो दिल दे विच है। असीं सारे रल मिल के एक प्रयास दे विच लगे हाँ भी साडा ये देश महानतम बुलंदियां दे उत्ते पहुंचे और एक समाज सेवी संगठन के नाते भारत विकास परिषद की पहचान पूरे विश्व के विच सेवा के कामां नूं करते हुए बनी है। बहुत घट संगठन होणगे जिहड़ी अपनी शुरुआत किसी कार्यक्रम की भारत मां के चरणों के विच नमन करके जोत जगा के पूजन करके आशीर्वाद लैके अपना कार्यक्रम शुरू करती है। अपनी इस मां भारती नूं वंदन करके वंदे मातरम के नाल कार्यक्रम शुरू करती है और उस दे नाल अज एक चित्र शायद नहीं लगा, वो चित्र हुंदा स्वामी विवेकानंद जी का। वो विवेकानंद जी जिन्हां ने एक जीवन की कला सिखाई, पूरे देश नूं पूरे विश्व नूं एक संदेश दिता। शिकागो दे विच पहली बारी किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अज वो यूरोप की दुनिया जिहड़ी कि स्त्री नूं किस सम्मान दे नाल देखती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक सन्यासी एक बाहरले देश च जाके उन्होंने एक भैन कह के बुलाता है। वो सोच के पहरेदार होंदे हुए भारत विकास परिषद उन्होंने पद चिन्हां दे चलते हुए समाज दे विच सेवा के कामां च लगी हुई है। बाकी तुहाडे कोल ते सारे 100 मैंबर है, जिहड़ी मेरी क्लब के सिर्फ 25 मैंबर ने ते लगातार 4 साल हो गए ने। मतलब हिमाचल पूरा जम्मू कश्मीर पूरा तो पंजाब पहले नंबर पर साडा क्लब है। हर बारी 200 तो उपर प्रोजेक्ट लगते हैं। ये सारा तुहाडा सहयोग है। मेरी एक निजी राय वे तुहाडी संस्था बारे तो मैनूं पता नहीं, फीस बहुत थोड़ी 2500। आप सारे बहुत वधिया परिवार बैठे, 2500 ना की भरेगा साल च, की करांगे आपां, कुछ नहीं कर सकते। घट्टो घट्ट मेरे मुताबिक 10,000 फीस चाहिए है, तो ही आपां कोई भलाई दे काम कर सकते हैं। ये मेरी अपनी रहे और तुहाडी संस्था दे चलो अपने मुताबिक तुसीं जिद्दां ठीक हो, और 2500 रुपये तो कोई है कुछ भी नहीं है। आपां इस संस्था नूं तां ही उपर ले जा सकते हैं जे आपां दिल खोल के आपां सेवा करिए। मेरी क्लब का स्लोगन मेरा यही है, मानवता की सेवा। परिषद के बारे में हम लोग जरूर करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आस्था ब्रांच को कि उन्होंने आज ये परिवार मिलन करके जो नई ऊर्जा पैदा की है हमारे परिवारों में, और इसी के चलते परिवारों के सहयोग से आने वाले पूरे वर्ष में जो हमारे भाई हैं, भारतीय बंधुर हैं, वो बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे काम जो है समाज के लिए करेंगे। तो जितने भी हमारे आज के मुख्य मेहमान गवर्नर साहब जहाँ पर पहुँचे हैं और उनके साथ जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक सत्संग एवं हवन यज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा और तानिया शर्मा मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए एवं यज्ञ वेदी में आहुतियां डाली। इस मौके पर ब्रह्म आचार्य पंडित अनुराग आर्य गुरुकुल करतार वालों ने पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। तो वहीं आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने अपने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं आर्य समाज के सचिव हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए याज्ञिक परिवारों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। पता नहीं है फलदा कब कर लग गए, पता नहीं है फलदा
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृत्युर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। मछली को प्यास है, मछली को प्यास है, आनंद सो दिन बह रहा पर तू उदास है, पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। तो हमें उस परमात्मा के प्रति ऋणी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चाहिए ना। उस परमात्मा के प्रति हमेशा क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का भाव कि उस ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा तो भेजा, परंतु जिस रूप में भेजा है उस रूप का मैं क्या करूं? साक्षात्कार करके उस ईश्वर की क्या करूं? उपासना करूं। वेद कहता है, उपनिषद कहता है, उपनिषद का इसका नाम है उप प्लस नि उपसर्ग पूर्वक सदरली धातु से क्यों प्रत्यय करने पर उपनिषद बनता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करना, यानी ईश्वर के समीप बैठ करके ईश्वरीय वाणी को सुनना। किसके माध्यम से सुनना? वेद वाणी के माध्यम से, यानी वेदों का सुनना क्या कहलाएगा? ईश्वरीय ज्ञान कहलाएगा। ठीक है। हमारे शरीर का भोजन क्या है? हमारा खान पान ना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का भी भोजन है। क्या है हमारी आत्मा का भोजन? ज्ञान। ज्ञान जब जब हमें मिलता है तब तब आत्मा क्या होती है? तृप्त होती है, यानी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान पाती है। श्रेष्ठ कर्म हमें करने हैं और उसके बारे में हमें बताया। आर्यन रॉ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये करतारपुर के जो विद्यार्थी हैं और बहुत ही अच्छे सूझबूझ तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम की व्यवस्था बना रखी है। वहाँ भी इनका पूरा मान सम्मान है और कार्यक्रम को जो हैंडल करते हैं। और दूसरा जो हमारे बीच में इन्होंने अपना एक छवि बना ली है इस आर्य समाज में। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी ये आर्य समाज के ही सदस्य हैं और बड़ा स्नेह मिलता है इनको प्रधान जी की तरफ से। गुरुकुल के जो भी विद्यार्थी हमारे बीच में आते हैं वो काफ़ी आनंदित होकर ये आते और गर्व महसूस करते हैं कि हमें आर्य समाज शहीद भगत सिंह नगर में मौका मिला। और हमें भी खुशी होती है कि एक पढ़े लिखे वक्ता हमारे बीच में आते हैं, कोई सुनी सुनाई बात लेकर नहीं आते। इन सभी ने चारों वेदों के मंत्रों का 20,700 कुछ मंत्र है, सभी का अध्ययन किया हुआ है, उसके ऊपर पूरी पकड़ है, बगैर देखे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अच्छा अनुवाद करते हैं और उसको सरल तरीके से समझाने की इनकी क्षमता भी है। आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आप अपना विशेष बच्चों जो कीमती समय हम सभी को देते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही भगत जी जो कि विशेष दैनिक सवेरा और हलचल से हैं, हमारे बीच में है और इस कार्यक्रम की सभी रोचक जानकारियां, तथ्य जो भी हैं अखबार में प्रस्तुत होता है, हलचल टीवी पर भी आता है और ये काफ़ी सालों से अपनी ये ड्यूटी निष्काम निभा रहे हैं और कोई भी स्वार्थ नहीं है, निष्काम ड्यूटी निभा रहे हैं। और अगर हम भूल भी जाते हैं सुधीर जी को इन्वाइट करना तो खुद ही आते हैं, कहते नहीं मेरी मौलिक ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैंने यहाँ की कवरिंग लेनी ही लेनी है। हम नित्य प्रति यज्ञ कर रहे हैं। आज उस यज्ञ की कड़ी को जोड़ते हुए जो हमारा विशेष सप्ताह का आयोजन आज हमारे बीच में हमारे बच्चे प्रदीप तान्या दोनों ने मिलकर के इस पवित्र पावन यज्ञ पर मुख्य यजमान को उपस्थित होकर इन्होंने सफल किया है। ये परमपिता परमात्मा ही कृपा है कि हमारा ये यज्ञ निरंतर ऐसे चलता रहे। आप सभी से भी सहयोग प्रार्थना है कि हर रविवार से पहले 2-4 दिन पहले कोई ना कोई अपना परिवार, रिश्तेदार, मित्रों से संपर्क करके इसकी सूचना अवश्य कर दिया करें।
और मेरे को तो कभी ने संकल्प लिया कि मैं कंटिन्यू हर रविवार पूरे ठीक समय पर आया करूँगा। ये इनके लिए तालियां का स्वागत है। मैं हर रविवार में सवेरे 8 बजे आकर बैठा करूँगा। मैंने वितरण कर लिया है, बहुत अच्छा, शाबाश। तो हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी ब्रह्मचर्य राव जी, उन्होंने आज मैं देख रहा था मंत्रोच्चारण तो करते देखा। यहाँ हमारे वार्षिक उत्सव पर इन्होंने जो ऋषि दयानंद का जो उनकी अगुवाई में ही सारा वो एक नाटिका के रूप में दिया, इन्होंने आगे करवाया था, करके सारी तैयारी इन्होंने की थी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर के गांव खोसा दल सिंह के नजदीक एक कैंटर और ई रिक्शा में हुई जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर घायल। गुरदासपुर के गांव तलवंडी विर्क के खेतों में से मिला एक पाकिस्तानी ड्रोन, पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा जांच के लिए। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।